हाय एवरीवन, आई एम मुदित जैन। कल मैंने आपको अपने एथिक्स मॉड्यूल वीडियो से बताया था कि एथिक्स पढ़ना कैसे होता है और मैं एथिक्स कैसे पढ़ाऊंगा। सिमिलरली आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसे। यूपीएससी डिमांड क्या करता है एसे राइटिंग में और मैं उस डिमांड को कैसे एड्रेस करूंगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये कोर्स जो है ये 24 और 25 दोनों के लिए वैलिड है। अगर इफ यू टेक दिस कोर्स नाउ एंड अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, then this course will be valid for 25 mains as well. मैंने एथिक्स में बताया था why I picked ethics because I scored 110 plus thrice in ethics and I am author of much loved DECODE ethics book. Similarly, with God's grace, I was able to score 135 plus twice in essay paper. Once I scored 136 or 135 and another time I scored 150 marks. So ट्रस्ट मी, आई नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये ऐसा नहीं है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज नहीं है। जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैंने खुद इंप्लीमेंट करी है अपने एग्जाम्स में। सो आई वेरी वेल नो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो। दूसरा, यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस बुक एज वेल। मैंने डिकोड ऐसे बुक लिखी थी जिसमें मैंने फिलोसफिकल ऐसे राइटिंग को एड्रेस करा था एंड दैट बुक वॉज रेफर्ड बाय वन ऑफ द टॉपर्स दिस ईयर। अब let's come to the topic what essay paper actually demands from you. If you go through the syllabus that UPSC has given for essay paper, it tells you about being precise and in coherent manner. So being precise means के आपको digress नहीं होना है इशू से। आपका कंटेंट जो होना चाहिए essay का, जो फैक्ट्स फिगर्स एनेक्डोट जो भी आपने लिखना है वो रेलेवेंट होना चाहिए टॉपिक से, वो कंसाइज होना चाहिए। दूसरा, रैंडम नहीं होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं कि मैंने अभी ये लिख दिया फिर मैंने दूसरी चीज लिख दी फिर मैंने तीसरी, मैंने बस सोशियो डायमेंशन लिखी फिर मैंने इकोनॉमिक लिख दी फिर पॉलिटिकल लिखने के लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स तब मिलेंगे व्हेन योर डायमेंशंस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, when one page is interconnected with the second page, when you have the skill to interconnect the anecdote that you have used in introduction with the conclusion. So वो डिमांड एड्रेस करनी बहुत जरूरी है ऐसे पेपर में। देन this is not a panacea, trust me, this is not a panacea that you have to write quotes, you have to write anecdotes, there must be some or other X factor in intro or conclusion, but if you do it then it serves you well. ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे तो बिल्कुल मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर करोगे it gives you edge over others. And of course the nature of topics these days is philosophical. If you go through last 2 years of papers 2022 and 2023, you will know that almost all the topics, 8 topics in each paper, were philosophical in nature. So addressing philosophical essay is very tough because those topics are view based. So if you're not writing facts, if you're not writing examples, if you're not writing content from GS in those essays, then it becomes a view based essay. Now the problem is my view and your view and view of the examiner may not match. Once that happens, then examiner is bound to give you less marks. But if you write your view and substantiate with facts, figures, examples, then it does not remain view as such. It becomes an established fact कि मैंने जो लिखना था मैंने वो लिख दिया, अब मैंने उसके रिलेटेड एग्जांपल्स भी बता दिए। तो ऐसे में एग्जामिनर हैज नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट योर व्यू एंड दैट इज व्हाई current affair examples are very much important in essay writing. Lastly, you have to write 2 essays. Okay, so you cannot follow socio-economic political approach in both the essays. The nature of topics, as you can see in this graph, they started with lesser number of philosophical topics, only one philosophical topic in 2013. That was very easy. Be the change you want to see in this world. All of us who have studied ethics, we know this quote very well. Then they gradually increased philosophical topics, especially since 2020, when say 6, 8, 7, 8 out of 8 topics, these are 6 to 8 topics are philosophical in nature. So if you have only one approach, then it becomes very difficult to handle, and hence time is now apt that you need approaches to handle philosophical essays, otherwise you won't be able to handle the topic. Now how I will teach ethics and essay and how I will meet this demand. सबसे पहले तो I'll give you quotes, anecdotes, conclusion, themes, etc.
I have a list of 20-25 anecdotes ready with me. I prepared them on my own. And the problem that I told previously कि anecdote लिख देते हैं and then we forget it. So what I have done, जिसका anecdote है उसी की quote, जिसका लाइफ बेस्ड किसी फेमस पर्सनालिटी की एनेक्डोट है उसी की कोट हम यूज करेंगे कंक्लूजन में. सिमिलरली कंक्लूजन थीम्स, जैसे आई ऑलवेज टेल इन माय एसेज वीडियो दैट आई यूज टू यूज ऑस्ट्रिच एज कंक्लूजन थीम, दैट वी कैन बी लाइक एन ऑस्ट्रिच एंड डिग आवर हेड इन सैंड एंड बिलीव दैट देयर इज नो चैलेंज और वी कैन टैकल द चैलेंजेस हेड ऑन. सिमिलरली मेरे पास 20 कंक्लूजन थीम्स हैं रेडीमेड जो आप अक्रॉस द एसेज यूज कर सकते हो. सो इससे होगा क्या, your intro and your conclusion part, the brainstorming part of that I have done myself and that will be ready made available to you. Then we'll discuss at least 10 templates. I have told you the importance of templates in the previous slide itself. If 18,000 people are writing mains, at least 12,000 or 13,000 at least will be writing socio-economic political. Now if I am an examiner, I have checked 99 copies today, yours is the 100th copy, and you have also followed that same approach, I am bound to be very less excited about it and it won't give me any X factor or something new to read. Your approach won't be unique. So we'll discuss at least 10 templates so that if at least you are still adamant to write socio-economic political in one of the essay, then in the next essay you can use some other approach. Then what will be the modus of this class? I want to explain that. Firstly, I'll discuss my approach so that you will learn. I'll discuss it live. You will learn that approach. I'll show you the application part of it. I'll make a live structure of essay. I'll select a PYQ topic and I'll make a structure of that topic based on my approach. After that, I will give you 2 topics. And on those 2 topics, you will brainstorm yourself. Whatever I have taught you just before, you will brainstorm structure of those 2 topics based on that approach. Then we'll discuss those structures. पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स ढूंढेंगे, उस स्ट्रक्चर को और इंप्रूव करेंगे. Then we will, I'll give you an assignment in every class based on the approach that we followed, and you will write that essay at home. And in the next class we'll discuss your essays. 2-3 essay हम देख लेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे, और जो कुछ मेरा जो मॉडल आंसर होगा वो मैं डिस्कस करूंगा, उसको मैं रीड करके बताऊंगा. सो हो क्या रहा है इसमें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. काफी ऐसे के मॉड्यूल आप देखोगे, दे जस्ट मेक यू राइट एसेज, दे डोंट टीच यू. उसका कोई यूज नहीं है. मैं भी चाहूं तो आई कैन क्रिएट अ 30-day मॉड्यूल एंड आई विल मेक यू राइट एसेज एंड आई विल सिट आइडल, लेकिन उसमें आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है. बेनिफिट आपको तब होगा when I teach you new approaches, when you apply them live that day, when you apply them at your home wherever you are preparing, और उसके बाद हम उसको डिस्कस करें. तो इससे क्या होगा, आपको ब्रेनस्टॉर्म करने की आदत हो जाएगी. फिर जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे आपको वहां ब्रेनस्टॉर्म करने में इशू नहीं होगा. ये स्टेपल का मैंने आपको इशू ऑलरेडी बता दिया है. मैं I'll be focusing both on generic and philosophical essays with, of course, a tilt towards philosophical, as I have already shown you in the graph that philosophical essays are increasing in number with every passing year. Assignment and model answer I have told. Now, अगर किसी को ये अप्रोच समझ नहीं आई है तो मैं दोबारा बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डिवाइज्ड दिस अप्रोच ऑन माई ओन. ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी. अगर रेस्ट एश्योर, अगर ये कहीं और मिल भी रही है तो वो मेरे से ही कॉपीड है, क्योंकि ये अप्रोच मैंने खुद डिवाइस करी थी, मैंने कहीं और से नहीं सीखी है. एसडीजीज होते हैं, 17 एसडीजीज हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको सबको पता है. पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ये सब होते हैं. 17 है. सो मेरी एक अप्रोच है जिसको मैं एसडीजी अप्रोच कहता हूं, जिसमें हम क्या करते हैं कि हर एक एसडीजी से एक पैराग्राफ लिखते हैं. तो मेरे 17 पैराग्राफ हो जाएंगे. मेरे एक पेज पे 3 पैराग्राफ होंगे, तो 17 पैराग्राफ मतलब है 17 पैराग्राफ्स विल टेक 6 पेजेस. सो माय मेन एसे बॉडी विल बी एंटायरली रिटन विद एसडीजी. मैं अब क्लास में जब मैं एसडीजी अप्रोच आपको सिखाऊंगा तो जैसे मैंने अभी बताया, आई विल टेक अ टॉपिक एंड आई विल ब्रेनस्टॉर्म इट लाइव फॉर यू. सो फॉर एग्जांपल, बी द चेंज यू वांट टू सी.
सो मैं इसका लाइव स्ट्रक्चर एसडीजी अप्रोच से आपको बताऊंगा। आप इतने में ये लर्न करोगे स्ट्रक्चर की अप्रोच, उसके बाद आई विल गिव यू 2 टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये टॉपिक आया था 22 या 21 में शायद। तो आप अब इस अप्रोच को यहां अप्लाई करोगे, इस टॉपिक में आप स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर हम आपको एक और टॉपिक देंगे, आप उसमें अप्लाई करोगे। विल डिस्कस बोथ द स्ट्रक्चर्स इन क्लास, हम थॉरली डिस्कस करेंगे, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और उसके बेसिस पे फिर एक असाइनमेंट दिया जाएगा, एक और ऐसी पीवाईक्यू टॉपिक होगा या सैंपल टॉपिक होगा, हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि इस साल क्या टॉपिक आ सकता है, और उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल एक अप्रोच रहेगी। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है कि जैसे ये टॉपिक है, सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी, ये 23 में आया था। तो ये पर्सनल रिफ्लेक्टिव अप्रोच है, जिसमें हम अपनी पर्सनल स्टोरीज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस या किसी फेमस पर्सनालिटी के एक्सपीरियंसेस के बेस पे पूरा ऐसे लिख देते हैं। दूसरा आपको नीचे दिख रहा होगा कॉज एंड इफेक्ट अप्रोच, ये इस अप्रोच से लिखा हुआ एसे है। तो एसे में भी मैं आपको पूरा ये बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये गैप छोड़ा हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इफ यू रीड एडिटोरियल्स, यू विल नो दैट प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। यू विल सी हियर के हर पैराग्राफ में मैंने एक ही लाइन को अंडरलाइन करा है। अंडरलाइनिंग इज इंपॉर्टेंट, बट डू नॉट ओवरडू दैट। फिर मैंने एक पैरा और दूसरे पैरा के बीच में कनेक्टर दिया है ताकि फ्लो मेंटेन हो। तो ये सब भी मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि फ्लो कैसे मेंटेन करना है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, कनेक्ट कैसे करना है अपने आइडियाज को, कंसाइज कैसे होना है, डायमेंशंस कैसे खोलनी है, एग्जांपल्स कैसे कैसे लिखने हैं। ओवरऑल आपको मिलेगा क्या है इस ऐसे में, जो मैंने एनेक्डोट्स, कोट्स, थीम्स हैं, एग्जांपल्स हैं, उसका पूरा मटेरियल होगा, एंड दैट मटेरियल विल बी इन इंग्लिश। We'll learn the approaches. I have already told you the importance of learning the approaches. This is the most important part that you will get from this course is brainstorming. As I told you previously, not many essay courses will make you teach, will teach you. They just make you write the essays. आप जाओगे, आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे, 10 essay लिखोगे, and you will come with almost nothing. You will be only as good as you were previously. यहाँ पे आप brainstorming सीखोगे, so that when you go to that exam hall, यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ हैंडलिंग एनी डैम टॉपिक, कि कुछ भी आ जाए। पिछली बार रैंडम टॉपिक आया था ना, मैथ्स इज म्यूजिक ऑफ रीजन, मैं उस पर भी आपको ऐसे लिखवा दूंगा, बहुत बढ़िया, अगर आप ये अप्रोचेस थोरली फॉलो करोगे। और टेक्निक्स जो है काफी और टेक्निक्स हैं, जब जैसे हम ऐसे से डाइग्रेस हो जाते हैं कई बार, तो कोर्स पे कैसे आना है, हाउ टू फोर्स द एग्जामिनर टू थिंक दैट यू आर ऑन राइट कोर्स, हाउ टू यूज द एसे पेपर इटसेल्फ टू राइट सम और अदर कोट्स। तो वो पूरा एक लिस्ट ऑफ टेक्निक्स हैं मेरे पास जो हम डिस्कस करेंगे। प्राइसिंग इज द सेम, जो प्राइस कल मैंने आपको एथिक्स के लिए बताया था, सेम एसे के लिए है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन both the courses, then you can take the bundle course. Overall the course flow is as of now what I have decided is that not more than 10 classes are needed. If there will be demand, if you say that, if n number of students will say that they are not satisfied, we can increase classes to 15. But as of now, trust me, as I told in the video beginning itself, I know what I am talking about. I have cleared this exam thrice, so you can trust me on that. Not more than 10 classes are required. मैं 30 classes दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऑनलाइन आना है, 30 classes कंडक्ट करनी है। आप लोग नंबर देख के सेटिस्फाई हो जाओगे, क्वांटिटी देख के, क्वालिटी नहीं होगी। क्वालिटी आपको 10 क्लासेस से ज्यादा चाहिए ही नहीं एसए की प्रिपरेशन के लिए। कोर्स विल स्टार्ट ऑन 12th of July. इट विल बी इन ऑनलाइन मोड, कंटेंट पूरा इंग्लिश में होगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू कन्वे ऑल माई आइडियाज इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज दिस इज एसे राइटिंग क्लास, देर इज नो यूज ऑफ हिंदी एज सच, बट थोड़ा बहुत यूज तो होगा हिंदी का, जैसे मैंने अभी बोला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू कन्वे इन दिस वीडियो। आई होप अगर आप कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते हो, आपको कुछ ना कुछ नया पर्सपेक्टिव इस वीडियो में मिला होगा। थैंक यू।